जो स्माइल मुझे उस गांव में मिलती थी ना जब मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलता था, ये स्माइल यहाँ पे नहीं। एट दैट डे आई रियलाइज्ड You don't know. जॉब नहीं है कि 217 गांव में से 110 गांव कंप्लीटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। अगर वो बता पा रहे हैं कि भाई मैं आपको ये आटा बेच रहा हूँ, ये इस फार्मर ग्रुप या इस गांव से आया था, अगर वो ये आपको बता पा रहा है, फिर तो लाइकलीहुड है कि वो ऑर्गेनिक होगा। हाँ। ये पूछने की जगह कि ऑर्गेनिक खाना महंगा क्यों है, हाँ, हमें ये पूछना चाहिए कि केमिकल वाला जो खाना है इतना सस्ता क्यों है? सस्ता क्यों है? जब सस्ता खाना ले रहे हैं, उसके पीछे एक किसान या उसकी फैमिली है जो अपना घर नहीं चला पाए, उसकी वजह से हमें सस्ता खाना मिल रहा है। बिकॉज दे नो, उनको पता है कितना जहर है, तो वो एक अलग से प्लॉट होगा छोटा सा अपने फैमिली के लिए, उसमें पेस्टिसाइड नहीं डालेगा। Welcome to the podcast. Today we have Divish with us, who is the founder of an organic food brand called Swadesi Way. This is an organization that I came across on Instagram, just like that. An ad popped up, I had a look at it, and I felt this was something that really resonated with me. Got in touch with the founders, and here we are with Divish, who is also going to, today we're going to talk about organic food, why we need it, why the nature needs it, why it is the need of the hour in terms of health, overall wellness, and also if you really care for the Mother Earth, then I think this is something that becomes really, really important to have a conversation around. So what we'll try to do is we'll try to ask questions from Divish, trying to understand why organic farming is important. First of all, why an organic produce is important, and how it can really impact our long-term health from nutrition standpoint and also from hormonal point. So that is what we will try to do today. So welcome, Divish, to the podcast. Thank you for making it. Thank you, Pooja, for inviting us. I mean, I was intrigued by the story that I saw on Instagram, where I came to know that you are from IIT, you passed out, and then after that, because you wanted to make an impact, you got into understanding of how food is grown, how it comes to the consumer, and how you got passionate about bringing the right quality of food to the people of India. So I'm very inspired by what you did and how you have had the resolve to do this. So very, very honored to have you and to understand really, what is that spark that lit this fire, and how did you, start this journey? So tell me, from IIT to where you are today, where did you begin? How did it begin? Okay, so I personally come from a urban background. Okay. So बचपन एक छोटे टाउन में था, but from class 7th onwards I was in Lucknow. My grandfather lives, grandfather, grandmother, they live in villages. Okay. But I had zero exposure of farming or agriculture. ठीक है. Knew nothing about it. Went to college. When I went to college, I thought I'll become like a physicist, like a particle physicist, want to become a scientist. And then in my first year, I just realized that, dude, here everyone is running a rat race. हर कोई बस भाग रहा है, किसी को भी नहीं पता कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं और क्यों भाग रहे हैं. And so I was the first child in my entire family और friends of family जो IIT गया. तो जैसे ही मेरा IIT में हुआ, मुझको तो सबने बहुत कॉन्फिडेंस दे दिया कि भाई क्या ही हो गया, मतलब लड्डू बट रहे हैं, हर दिन घर में 100-200 मतलब लोग आ रहे हैं मिलने के लिए. बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज आई सॉ दैट इवन इतना सब करने के बाद ही बच्चे कितने फियर में जी रहे हैं. हाँ. कितना अंडर कॉन्फिडेंस है. तो मुझे ये रियलाइज हुआ, बाय डिफॉल्ट जो ये लोग कह रहे हैं करने को जिंदगी में, वो तो सच नहीं है. अच्छा. क्योंकि फिर तो मुझे दिख रहा है कि फिर तो हम जिंदगी भर इसी में चलेंगे. राइट आंसर मेरे सीनियर्स के पास नहीं. जिंदगी का राइट आंसर कुछ और है. दैट आई रियलाइज इन माय फर्स्ट ईयर. देयर वर फ्यू
seniors who were like doing very offbeat things in college, who also like give you confidence that you are not the first one. And then first year के end में ना एक internship करनी होती है. ठीक है. Like you can do anything. So I went to one of my seniors and I asked him कि मैं क्या करूँ first year में. उसने कहा इस टाइम को टेक्निकल करके कुछ फायदा नहीं है. You just don't have enough knowledge. वो तो बाद में करना. You have तो to आप क्या बनना चाह रहे थे? आप कौन सी क्या किया था आपने? आईटी में कौन सा फील्ड में? So I was an electrical engineer. इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग. Yeah. ओके. He said if you want a different view of the world. हाँ. I also had a very pampered childhood. अच्छा. कि छोटा बेटा है घर में, सब चीज वहीं पे मिल जा रही है, हाँ. जूस मिल जा रहा है, बेटा बस तू पढ़. ओके. But when I came to Delhi, I like, भाई, there is so much which can happen. So he said you have two choices. अगर कुछ नया एक्सपीरियंस चाहिए, या तो इंडिया के बाहर चले जाओ. ओके. So that you just experience something which you haven't experienced before, or go to a village and spend 45-50 days there. That will, any of the extreme will give you an exposure which you don't have. And I thought that गाँव जाना तो बहुत ही cool चीज है, कोई नहीं कर रहा है. I thought so cool. हाँ. And there was an internship जिसमें वो students को NGOs के साथ partner करते थे. ओके. And in my head, spending 45-50 days in a rural mountain village, हाँ. I thought it would be so cool. हाँ. मजा ही आ जाएगा. And like मैं कॉलेज में पॉपुलर हो जाऊंगा, कूल किड. लोग तो हाइक्स पे जाते हैं, ट्रैक पे जाते हैं. मैं तो 50 दिन गांव में रह के आया हूँ, पहाड़ के गांव में. So I went there. I had the best time of my life. ओके. Like I was working with an NGO called Chirag. अच्छा. उत्तराखंड में अपर हिमालयज में एक सिमायल एक जगह है, वहां पे वो काम करती है. मुझे अपार्ट फ्रॉम द वर्क दैट आई डिड, अंडरस्टूड कि वो लोग क्या कह रहे हैं. मैं फैमिली के साथ रहता था, पूरे टाइम उनके साथ ही 2 महीने रहे. अलग अलग गाँव में बहुत ज्यादा था. डेली कम से कम 15 से 20 किलोमीटर चलता था. अच्छा. हाँ, अलग अलग घरों में जाके मुझे इंटरव्यू लेना होता था. वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड वाज, उनकी लाइफ में ना एक सेंस ऑफ कनेक्शन और ग्रैटिट्यूड है. जैसे, और एक ट्रस्ट है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. 6-7 दिन बाद क्या होता था, तो मुझे क्या करना होता था, मुझे ना अलग अलग गांव में जाके फैमिलीज में जो औरतें हैं उनका इंटरव्यू लेना होता था कि वो लोग अपने गायों को कैसे पालते हैं. अच्छा. उसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे पूछने होते थे. एंड घर पहाड़ों पे बहुत दूर होता है. हाँ. 10-10, 15-15 किलोमीटर, मतलब एक गांव फिर दूसरा गांव. तो कोई रास्ता भी नहीं होता है. सो यू डोंट हैव अ गूगल मैप टू गो फ्रॉम वन हाउस टू अनदर. सो दे वुड से वो आगे एक पेट्रोल पंप आएगा ना, वहां से लेफ्ट ले लेना और फिर वहां से चलते जाना तो घर आ जाएगा. तो मुझे रास्ते में कोई भी मिलता था. अगर मुझे रास्ते में एक घर मिला जिनसे मैंने पूछा कि मुझे इनके घर जाना है, कहाँ पे जाऊँ, तो पहले बोलते थे अच्छा तुम यहाँ से नहीं हो. मैं बोलता नहीं. कहते थे एक काम में थक गए हो, थोड़ा लस्सी पी लो, दही पी लो. अगर लंच के टाइम होता तो खाना खिला देते थे. मेरा कोई कनेक्शन नहीं है उनसे, ना मुझे उनसे बात करनी, ना मैं उनसे मिलना है. दे आर जस्ट, आई जस्ट वेंट टू देयर होम टू आस्क फॉर डायरेक्शंस. अगर मेरे घर के बगल में खेत होगा तो वो आड़ू या पीच खिला देंगे. सो आई रियलाइज्ड इस जगह पे अगर मैं रह रहा हूँ, मुझे घर से खाना ले जाने की जरूरत नहीं. मैं भूखा नहीं. यहाँ पे जो लोग हैं ना वो मेरी केयर ऑफ यू. मैं भूखा नहीं रहूंगा. एंड आई यूज्ड टू लाइक, सो दैट सेंस ऑफ trust in life, in people, and I thought they have so little financially and still they are so much giving and they are so happy. तो मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि खुशी तो कुछ इस तरफ है. हाँ. Exactly क्या है नहीं पता, but definitely I felt they are happier than most of us. Yeah. I also realized a lot of challenges that they're facing, so I'm also not romanticizing their life. उसके बाद मैं वापस आया और हमारे कॉलेज में ना ऐसे सेशंस होते हैं, लाइक हमें किसी कॉर्पोरेट पे लेके जाएंगे, लेट्स से सेशन ऑन कम्युनिकेशन, समथिंग और द अदर. सो वन ऑफ द बिग 4 ऑडिट अकाउंटिंग कंपनीज, KPMG, उसमें हम गए. एंड आई वाज लाइक, हम सब सूट पहन के गए हैं अंदर. एंड जो पर्सन था, शी वाज as soon as we entered, she just said hello, nice to meet you.
एंड मैंने कहा इसकी तो फेक स्माइल है। हम्म मतलब मुझे लगा कि जो स्माइल मुझे उस गांव में मिलती थी ना, जब मैं किसी स्ट्रेंजर से मिलता था, ये स्माइल यहाँ पे नहीं। एट दैट डे आई रियलाइज्ड You don't know. जॉब नहीं करनी। सो इन माई सेकेंड ईयर आई न्यू कॉर्पोरेट जॉब तो नहीं करनी, क्योंकि मैं ये जिंदगी तो नहीं चाहता अपने लिए। This was which year? This is 2011. So I अच्छा. went to IIT in 2010, passed out Okay. in 2015. Okay. So I realized corporate job तो नहीं करनी. Then during college I did a lot of work with many NGOs, did many rural internships, started my own rural startup. And I realized, dude, this work is very hard. Yeah. I just do not have enough context of their life to build something for them. Okay. इतना आसान जितना दूर से लग रहा है ना कि हाँ अरे मैं तो आईटी से हूँ, पढ़ के कुछ अच्छा कूल बना लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे स्केल पे, इतना आसान नहीं है। एंड दैट वी जस्ट जो भी ट्राई करते थे सब में फेल हो जाते थे। Okay. एंड दैट कंटिन्यू टिल आई पास आउट एंड आई रियलाइज मुझे पहले बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। एंड आई वॉन्टेड टू वर्क इन विलेजेस, सो देन आई वेंट जॉइंड अ नॉन प्रॉफिट कॉल्ड डिजिटल ग्रीन। Okay. दिल्ली में उनका हेडक्वार्टर्स है एंड दे वर्क इन एग्रीकल्चर। Okay. सो तब तक मेरा एग्रीकल्चर या फार्मिंग से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं था। व्हेन आई वर्कड इन डिजिटल ग्रीन आई वर्क देयर फॉर अराउंड 2.5 years. हाफ ऑफ द टाइम आई वाज लिविंग इन बिहार Okay. फॉर माय वर्क। एंड हमारा प्रोजेक्ट था कि जो किसान सब्जियां उगाते हैं कैसे हम उनको उनकी सब्जियों का बेटर प्राइस दे सके। Okay. तो क्या होता है, अगर कोई किसान नॉर्मल सब्जियां उगा रहा है तो उस अपने आसपास की कोई मंडी होगी वहां पे जाके बेच देगा। उसको ये नहीं पता दूसरी मंडियों में क्या प्राइस चल रहा है, उसके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती। वेजिटेबल्स अगर आपने आज हार्वेस्ट करी तो आपको आज ही बेचनी पड़ेगी। Correct. तो अगर वो ट्रेडर बोल रहा है कि 5 रुपए तो 5 रुपए, भले ही आपका उसको उगाने में 10 रुपए लग गया। Correct. So we thought, okay, can we do something with technology, etc., to solve this problem? Okay. Worked there for 2.5 years. बहुत ज्यादा सीखा। सॉल्व कैसे करने के लिए क्या लगेगा ये भी सीखा। Okay. क्या एग्रीकल्चर में क्या गैप्स हैं ये भी सीखे। एंड मुझे ये समझ में आया ये सिस्टम ही फ्लॉड है। लाइक व्हाट वी वर ट्राइंग टू डू वाज, अच्छा इस मंडी ने इस मंडी पे लेके चले आओ, इस मंडी ने इस मंडी पे लेके चले आओ, but it doesn't work that way. I mean, it's a very systemic problem. One example that I can give is winters के टाइम पे गोभी बहुत होती है बिहार में। And I remember there was one farmer जिसने अपनी गोभी हार्वेस्ट करी और वो मंडी में उस दिन गोभी का रेट 1 रुपए किलो था। Oh gosh. 1 रुपए किलो। और वो अपनी गोभी लेके गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने 1 रुपए किलो में गोभी बेच दी। वापस आया, उसके फार्म में जितनी गोभी थी उसने सब ट्रैक्टर चलवा दिया उसके ऊपर। उसने बोला 1 रुपए तो मेरा मंडी तक पहुंचने का खर्चा है। Oh God. क्या करूंगा मैं ये गोभी उगा के। और उसने अब ट्रैक्टर चला दिया कि तो गाय खाएगी, अब क्या कुछ नहीं कर सकती। क्यों? देन ऑब्वियसली वो उस गांव का अकेला किसान नहीं है, उस गांव में 50 और किसान होंगे जिन्होंने गोभी उगाई है। आई थॉट कुछ तो हमें करना पड़ेगा। पूरे बिहार में जितनी मंडियां हैं हमने सब जगह कोशिश करी, कहाँ इतने लोगों की गोभी, बिकॉज इट फेल्ट लाइक योर ओन पेन। क्योंकि मैं उनके घरों पे रहता हूँ, उनके साथ रह रहा था मैं वहां पे, यार मैं कैसे इनके साथ ये होने दे सकता हूँ। एंड एट द बेस्ट वी डिड, हमने गोभी 2 रुपए किलो बिकवा पाए। God. Even with all technology, all resources, we couldn't do anything better for them. And then I realized these kind of solutions are not working. Then I moved to Auroville Okay. because I like हमें कुछ स्क्रैच से कुछ अलग बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है मुझे नहीं पता, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है। मुझे मेरे एजुकेशन सिस्टम ने या मैंने जितना भी अभी तक काम किया है उसने मुझे ये सब सिखाया ही नहीं है। आई वॉलंटियर्ड इन ऑरोविल फॉर 2 years. देन आई रियलाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कुछ होता है, ठीक है। इस तरीके से भी उगाया जा सकता है। केवल दूर दूर कस्टमर्स को बेचने की जरूरत नहीं है,
आपकी एक कम्युनिटी भी हो सकती है जो आपको सपोर्ट कर रही है. एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस इन रेट्रोस्पेक्ट, ओके बिकॉज वो जो किसान थे बिहार में वो बहुत पेस्टिसाइड्स डालते थे. बहुत, मतलब सब्जियों में तो हमारे कितना पेस्टिसाइड डाल रहा है जा रहा है उसका कोई हिसाब ही नहीं. ओके सो बहुत ही ज्यादा पेस्टिसाइड डालते थे. एंड मुझे लगता था, और अपने लिए जो कर रहे थे उसमें ही डालते थे. अच्छा सो उनका एक, बिकॉज दे नो पेस्ट, उनको पता है कितना पता है. जहर है, तो वो एक अलग से प्लॉट होगा छोटा सा अपने फैमिली के लिए, उसमें पेस्टिसाइड नहीं डालेगा बिकॉज ये तो अपने घर को खिलाने. पर जब आप किसी चीज को मंडी में बेचते हो ना, अब आप डिस्कनेक्टेड हो चुके हो कंज्यूमर से, आपको उसकी कोई केयर नहीं. आप उसकी क्यों केयर करोगे? वो ट्रेडर आपकी केयर नहीं करना, आपको कह रहा है 1 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, आप क्यों केयर करोगे कि आप Correct. गोभी में क्या डाला? करेक्ट So they would spray a lot of pesticides, and I was, even when we used to tell them कि ये मत डालो, no one would listen. When I came to Auroville, I realized okay, difference, अगर एक different system बनाना होगा कि पेस्टिसाइड्स ना डालें, फार्मर को बेटर प्राइस मिले, तो उसको सपोर्ट की जरूरत है उसकी कम्युनिटी से, उसके आसपास के कंज्यूमर से. एंड आई स्पेंड 2.5 years there, realized what is the possibility of creating a good food system, and from there gradually Swadeshi Way started. So yeah, very long. No, that's good to know the background of what challenges you faced, and then finally you've come up with a model in Swadeshi Way, which is different from what other people are doing. Yeah. So आप हमें ये बताएं कि आपका जो मॉडल है वो कैसे काम करता है और कौन कौन से लूप होल्स हैं जो अब आपने हटाए हैं उसमें, and is also I want to know whether this is replicable for other people to adopt something similar, that you know what you are doing, can it be scalable? And can somebody else use the same model, and then we have maybe in 10 years time we have lots of Swadeshi ways that are working around and giving us the right quality of food. तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि आपका कौन सा मॉडल आपने क्रैक किया है और क्या ये सस्टेनेबल है, स्केलेबल है, प्रॉफिटेबल है? Sure. So एक चीज, I mean the basic premise is, can we create a food system जो कंज्यूमर्स को वो खाना दे जो हेल्दी है, फार्मर्स को वो प्राइस दे जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें, अपने बच्चों का फ्यूचर बना सके, और नेचर के बैलेंस और हार्मनी में चले, हम उस नेचर को एक्सप्लॉइट ना करें. ये करने के लिए हमें लगता है कुछ कुछ बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जो हम स्वदेशी वे में कर रहे हैं. पहली चीज ये है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स लेते हैं सारे या तो डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल फार्मर से आते हैं या तो एक फार्मर ग्रुप से आते हैं. 90% प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम अ फार्मर ग्रुप. ओके एंड दैट इज नीडेड बिकॉज जो छोटा किसान है वो अकेले जब इस बड़े इंडस्ट्रियल सिस्टम के सामने लड़ता है तो कभी जीत नहीं पाता. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फार्मर्स जो हैं वो यूनाइट हों, ताकि जब वो मिलेंगे तो वो मिल के कलेक्टिव चॉइसेस ले सकें. मुझे क्या उगाना है, कैसे उगाना है, किसको बेचना है, अदरवाइज वो कोई बार्गेनिंग पावर ही नहीं होगी उनके पास. सो वन थिंग दैट वी रियलाइज्ड, क्रिएटिंग फार्मर कलेक्टिव्स ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज वन पार्ट ऑफ इट. फार्मर कलेक्टिव जहाँ पे सारे फार्मर्स अग्री कर रहे हैं, जिनको ये समझ में आ रहा है कि यार मेरे गांव में पिछले 20 साल 30 सालों से पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर डाले जा रहे हैं और उनको अब समझ में आ गया है ये सही तरीका नहीं. एंड ऑल ऑफ देम आर सेइंग वी विल स्विच टू ऑर्गेनिक एंड वी विल मेक इट वर्क. अच्छा, So sourcing directly from such farmer collectives is one. और ये काफी हैं या कम मात्रा में? काफी हैं. ओके I would say, मतलब हम इस वक्त 12 फार्मर कलेक्टिव्स के साथ काम करते हैं जिनसे हम हमारे सारे नॉन पेरिशेबल लाइक ग्रेन्स, ऑयल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स. और कलेक्टिव, व्हेन यू से कलेक्टिव, व्हाट डज दैट मीन? कलेक्टिव मीन्स अ ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो साथ में आए अच्छा, एंड दे आर एटलीस्ट सेलिंग द प्रोड्यूस टुगेदर, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि वी विल एंश्योर कि सारे फार्मर इस ग्रुप के ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं. एंड ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि, मतलब वो ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उनका एक खुद का कलेक्टिव ब्रांड स्टेक पर है. अच्छा, मान लीजिए, टू गिव एन एग्जांपल, भूमगाड़ी फार्मर्स कलेक्टिव है दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में. वहां से हमारे नेटिव राइस वेराइटी, उनसे जो पोहा, और ये कितने फार्मर्स होंगे एक कलेक्टिव में? इट कैन वेरी बिटवीन
it could be as less as 20-30, Okay. and something like a Boomgadi Farmers Collective is more than 1,000 farmers. Oh, nice. So it works because it is very scalable Correct. that way. सारे फार्मर कलेक्टिव अच्छा काम करें ये जरूरी नहीं. So I would actually say 95% or 99% farmer collectives in India are just on paper. अच्छा. They are not really working like a collective. They are not working with that spirit. But जो 1% है वो बहुत ही अमेजिंग काम है. Okay. Amazing. लाइक भूमगाड़ी फार्मर्स कलेक्टिव ने उन्होंने स्टार्ट किया प्रोबेबली कुछ 5 या 10 फार्मर्स में. Okay. उनका विजन था कि हमारा पूरा दंतेवाड़ा का डिस्ट्रिक्ट हमें ऑर्गेनिक बनाना है. Wow. सो दे डिड नॉट से कि हम अपने 10 फार्मर्स का एक अच्छा बिजनेस बना लें, हम अपने गांव को ऑर्गेनिक बना लें. उनकी सोच बहुत बड़ी थी. पूरे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं, कुछ 12 साल पहले शुरू किया. इस वक्त दंतेवाड़ा के 217 गांव में से 110 गांव कंप्लीटली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है. Amazing. और उन्होंने एक एक फार्मर को मैप कर रखा है कि जो 107 गांव अभी सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं है, उनमें से कौन सा फार्मर है जो अभी भी पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, उसको कैसे बदलेंगे, ये सब की वो प्लानिंग कर रहा है. सो कलेक्टिव्स कैन लाइक दैट इज द पावर ऑफ कलेक्टिव. इफ यू वांट टू, अगर हमें अच्छा खाना खाना है, ये तब तक नहीं होगा जब तक गांव ना बदले. ये सच है. बिल्कुल. और गांव तभी बदलेंगे जब गांव के लोगों के पास पावर आएगी. करेक्ट. उनके पास पावर तभी आएगी जब वो इकट्ठे होंगे. इसलिए हमारा सिंपल प्रिंसिपल है कि हम कलेक्टिव से सोर्स करते हैं सामान ताकि वो एम्पावर हो सके. एब्सोल्युटली. एंड सो लाइक फॉर एग्जांपल समवन लाइक भूमगाड़ी कलेक्टिव, उनका प्रॉब्लली हम उनका 5 या 10% प्रोड्यूस लेते होंगे. सो देयर इज क्लियरली स्कोप कि और लोग भी उनसे लें. लेते क्यों नहीं है वो एक अलग सवाल है कि दूसरे लोग उनसे क्यों नहीं लेते. बट देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. एंड अगर उसके बाद उनके बहुत सारे कंज्यूमर जुड़े और डिमांड आई, आई एम श्योर भूमगाड़ी विल बी एबल टू स्केल. कितने और कलेक्टिव जो बस वेट कर रहे हैं हाँ कि यार मेरा सामान बिक जाए ना, तो मैं भी ना जिस तरीके से काम करना चाहता हूँ उस तरीके से कर पाऊंगा. मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा. ऐसे लोगों को सपोर्ट मिलेगी. सो आई डोंट थिंक कलेक्टिव और स्केल और that is a challenge at all. Okay, so that's one thing, that you are connecting to the farmers through collectives, and you're sourcing it directly from the people who are doing a good job, that you have identified these with care, selection and understanding of understanding की route पे क्या काम हो रहा है, अच्छे से हो रहा है या नहीं, that you make sure. Exactly. The other thing aspect is obviously how do you pay them, and is that different from how? Yeah. So one thing that we do is we never negotiate with a farmer collective. अच्छा. कि क्या price होना चाहिए. So usually even for organic food, when let's say if a business is buying from a trader or from a farmer, what they will usually say is, अरे पर मार्केट में ये रेट चल रहा है, आप ये क्यों चार्ज कर रहे हो. और they would say नॉन ऑर्गेनिक का प्राइस 50 है, मैं आपको 52 दे दूंगा. तो आप जो मंडी में बेचते हो उसे 2 रुपए 5 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा. सो स्लाइटली साइड टॉपिक, बट ऑर्गेनिक महंगा इसलिए नहीं है क्योंकि फार्मर को बहुत ज्यादा मिल रहा है. ऑर्गेनिक महंगा दूसरी वजहों से है. हमारे केस में हम कलेक्टिव से ये पूछते हैं कि आपने कोई भी प्राइस बताया मुझे, आप इस प्राइस पे कैसे अराइव किए. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स दे आर नॉट एबल टू मेक अ गुड बिजनेस सेंस. सो वी आस्क देम, अच्छा आप मुझे मान लो कोई चीज 60 का दे रहे हो, इसमें फार्मर को कितना मिलता है, उसके बाद प्रोसेसिंग में कितना कॉस्ट जाता है. वी आस्क दैट काइंड ऑफ अ ब्रेकअप. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट. इट्स लाइक अ रिलेशनशिप विद देम. इफ वी फील व्हाट दे आर सेइंग इज, इफ व्हाट दे आर सेइंग मेक्स सेंस, देन वी पे देम दैट प्राइस. इफ वी डोंट, देन इट्स नॉट अ नो, देयर इज अ कॉन्वर्सेशन. क्या आप कह रहे हो कि आपको स्टोरेज में इतना पैसा लग जाएगा, बट एक्चुअली तो इतना लगना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए. And sometimes they realize, oh yes, I think we made a mistake. Access नहीं होनी चाहिए. Sometimes they say, yeah, you are right, but हमारा एक्चुअली अभी स्केल इतना नहीं है. अगर आप हमसे इतना ले लोगे ना, तो हम आपको ये प्राइस दे पाएंगे. And the conversation always starts from what is the right price for farmer. We need to make that happen.
एंड देन वी से बाकी कॉस्ट क्या होती हैं, इसके बाद आप ऐड करते हैं एंड देन यू फाइनली डिसाइड कि व्हाट द सेलिंग प्राइस शुड व्हाट बी. द सेलिंग प्राइस. ओके. In our case, so the second key thing is 60% goes to these pharma collectives. So we are very transparent about it. आप 100 रुपए का हमसे सामान खरीद रहे हो, उसमें से 60 रुपए उस फार्मर कलेक्टिव के पास जा रहा है. बाकी 40 रुपए से उस फार्मर कलेक्टिव से सामान हमारे वेयर हाउस दिल्ली में लाना, उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग, क्लीनिंग, उसका पैकिंग, वेबसाइट, टेक्नोलॉजी, हमारी टीम, आपके घर तक की डिलीवरी, ये सारी कॉस्ट हम बाकी 40% 40% में. ट्रांसपेरेंसी आई थिंक इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड ट्रस्ट. या. अगर हम स्वदेशी वे में ये कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उस फार्मर का फायदा हो, या एक विलेज, गांव बदले, एक फार्मर कलेक्टिव एम्पावर हो, तो मुझे बताना बहुत जरूरी है कि मैं कितना पैसा उनको दे रहा हूँ. अगर मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मेरे काम से फायदा हो रहा है पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, देन आप कैसे ट्रस्ट करोगे? हाउ विल अ कंज्यूमर पार्टिसिपेट इन दिस मूवमेंट? सो आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, being transparent about how much money goes to these collectives is very important. This I think is also very doable. I have never seen any customer saying कि इतना क्यों दे रहे हो उनको. अच्छा. थोड़ा उनको कम दे सकते हो क्या ताकि मुझे भी कम मिल जाए. When you are transparent, then people don't ask these questions. And you were also saying कि आपके यहाँ रिफंड की रिक्वेस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो है. कोई नहीं मांगता आपसे कि आप. कितने लोग, कितने सारे कस्टमर्स हैं जो मुझे बोलते हैं, जैसे मान लो उनके किसी सामान में कुछ कीड़ा निकल गया, है ना, एंड दे आस्क when like we offer them, like if there's an insect then we offer them refund from our side कि आपको रिफंड चाहिए क्या. कई बार लोग बोलते हैं अगर मैं रिफंड लूंगा तो उस फार्मर का भी नुकसान होगा क्या. सो जस्ट बिकॉज इन आवर कम्युनिकेशन we are transparent with them that this comes from this farmer collective. Third thing which I wanted to mention is हमारे हर प्रोडक्ट के फ्रंट ऑफ पैक पे लिखा होता है कि ये सामान कौन से फार्मर कलेक्टिव से आया है. अगर किसी इंडिविजुअल फार्मर से आ रहा है तो कौन से फार्मर से आ रहा है, इसका नाम लिखा होता है. बिकॉज हम चाहते हैं कि आप एक रिलेशन बिल्ड करो. करेक्ट. आप देखो यार कि आपका सामान किससे आ रहा है, कुछ समझो, कोई फार्मर ग्रुप है दंतेवाड़ा में इतना अच्छा काम कर रहा है, एक बार गूगल सर्च ही कर लो उसका नाम, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेके देखो सच में ऑर्गेनिक है कि नहीं. हाँ. तो पर जब आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंट रहते हो और कस्टमर को बोलते हो रिश्ता बनाने को, तो बहुत सारे कस्टमर्स समझते हैं इस बात, एंड देन इट्स अ डिफरेंट रिलेशनशिप. या. सो ये तीनों चीजें जो हमारे की प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टली फार्मर ग्रुप्स या इंडिविजुअल फार्मर से लेंगे, फार्मर को कितना पैसा देंगे ये कस्टमर को बताएंगे, और फ्रंट ऑफ पैक पे मेंशन करेंगे कि ये किस फार्मर ग्रुप से आ रहा है ताकि कस्टमर भरोसा कर सके ये सच में ऑर्गेनिक है. ये तीनों चीजें कंप्लीटली स्केलेबल है. ओके. ऐसा कोई रीजन नहीं है कि कोई दूसरा ब्रांड ये काम नहीं कर सकता. कोई भी नया ऑर्गेनिक बिजनेस आज शुरू करना चाहता है, वो बस हमारी वेबसाइट पे जाए, फ्रंट ऑफ पैक पे दिख जाएगा हमें क्या सामान हम कहाँ से ले रहे हैं, वो वहां से लेना शुरू कर दे. बिल्कुल. उसके से हमने सारे सोर्सेस वेरीफाई कर रखे हैं, उसके लिए इतना सारा खर्चा, इतना सारा एफर्ट बच गया. सो आई फील दैट दिस इज वेरी स्केलेबल एंड आई जस्ट होप दैट मोर पीपल डू इट. That's amazing. That's really, really good. So, एक दूसरा क्वेश्चन जो कई लोग मान के चलते हैं कि एक उनको ये भी समझ में नहीं आता कि ऑर्गेनिक फूड महंगा क्यों होता है ज्यादा एज कम्पेयर टू जो आपको नॉर्मल कमर्शियल आउटलेट्स पे जो भी मिल जाती है चीजें, इतनी सस्ती हो गई हैं वो आजकल कि उसके कंपैरिजन में जब आप एक एक्शन लेते हो कि नहीं मुझे ऑर्गेनिक खरीदना है, तो देन दे फील लाइक दे फील द पिंच कि यार दिस इज लिटिल मोर एक्सपेंसिव. So explain me why this ends up becoming more expensive. It has to be expensive या अभी स्केल का प्रॉब्लम है, जैसे ही स्केलेबल हो जाएगा तो ये प्राइसेस कम होने लग जाएंगी. सो ये दोनों मिक्स है. ओके. पहली चीज तो ये है, मुझे लगता है ये पूछने की जगह कि ऑर्गेनिक खाना महंगा क्यों है, हाँ, हमें ये पूछना चाहिए कि केमिकल वाला जो खाना है इतना सस्ता क्यों है. सस्ता क्यों है. इसमें दो बातें हैं. एक बात तो ये है कि अगर आप महंगाई बढ़ती है
हर चीज़ का प्राइस बढ़ता है। पर अगर आप गूगल करोगे ना कि 1960s में गेहूं का क्या प्राइस था और आज गेहूं का आटे का क्या प्राइस है, और किसी भी दूसरा प्रोडक्ट जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं कपड़े वगैरह, फूड का प्राइस बढ़ता ही नहीं, बहुत ही कम बढ़ा है। बाकी चीज़ों का प्राइस फूड के पैसे कंपेरिजन में 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसा क्यों हुआ? एक रीज़न इसका ये है क्योंकि हमारा देश बहुत ही गरीब देश है। बहुत सारे लोगों के पास इनफ पैसा नहीं है। सरकार चाहती है कि खाना सस्ता हो, पर अब उसका एक कॉस्ट होता है। खाना अगर सस्ता है, इसका मतलब एक तो जो भी करके ज़्यादा खाना उगा सको वो करना है। हाँ, तो क्योंकि आपको खाना सस्ता बनाना है। दूसरी बात है कि आप किसान को जितना कम पैसा हो सके उतना कम पैसा दोगे। तो मुझे लगता है इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है कि केमिकल वाला खाना पहली बात सस्ता इसलिए है क्योंकि वो जो किसान है जो उगा रहा है उसको सही प्राइस ही नहीं मिल रहा है उसके काम का। उसके पास सबसे कम पावर है इस पूरी चेन में। कंज्यूमर्स, बिजनेसेस, बीच में कुछ मिडिलमैन एंड देन फार्मर। फार्मर के पास सबसे कम पावर है। तो आप कोशिश करते हो कि मतलब पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम, बिजनेस सिस्टम कोशिश करता है कि जितना ज्यादा उसको दबा सकें, उसका एक एक पैसा उससे निकाल सकें, वो निकालेंगे। तो हम जब सस्ता खाना ले रहे हैं उसके पीछे एक किसान या उसकी फैमिली है जो अपना घर नहीं चला पाया, उसकी वजह से हमें सस्ता खाना मिल रहा है। ये तो पहली बात है। ठीक है। जब हम ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होते हैं तो एक तो जो एक ऑर्गेनिक फार्मर है ना वो थोड़ा स्वाभिमानी होता है, क्योंकि अगर वो स्वाभिमानी नहीं होता तो वो दुनिया से लड़ के ये काम नहीं करेगा, काम नहीं कर रहा होता। और वो इतना कर रहा है और उसको लगे ना कि यार मेरे काम की अभी भी कोई वैल्यू नहीं है क्या, तो वो क्यों करेगा ये काम? तो वो भी चाहेगा कि उसको अच्छा प्राइस मिले। हम भी चाहेंगे कि यार थैंक यू कि आप हमारे लिए ऑर्गेनिक खाना उगा रहे हो, हम आपको एक अच्छा प्राइस दें। नॉट बिकॉज ऑर्गेनिक खाना उगाना महंगा है, but because you deserve that price. Correct. It is the effort, it's the value of the effort that you're putting in. It's the skill that you're putting in. If you go to a organic farm, it is a very skilled work. आपको नेचर का बहुत डीप एक्सपर्टीज होने की जरूरत है। आपको वेदर समझना चाहिए, आपको इंसेक्ट्स देख के समझ में आना चाहिए, लेकिन आपका एक कनेक्शन है नेचर के साथ जो केमिकल फार्मिंग में नहीं है फार्मर के लिए जरूरी। तो उतने स्किल्ड काम के लिए आप फार्मर को एक्स्ट्रा पैसा दोगे। इस वजह से आई वुड से जो इंक्रीज इन प्राइस है 15 to 20% एक्स्ट्रा बनता है ऑर्गेनिक का, सो दैट फार्मर्स को सही प्राइस मिल सके। अगर आप जिनसे भी ऑर्गेनिक फूड ले रहे हो उनका प्राइस 20% 25% ज्यादा है, देन आई वुड से इट्स फेयर। उसके बाद के जो रीजंस हैं वो 2 या 3 और रीजन है जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रीजन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऑर्गेनिक ब्रांड्स लाइक अस आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू बिग कंपनीज लाइक आईटीसी। हम कोई सामान भूम गाड़ी से दिल्ली ला रहे हैं, उसका कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। हम इट्स ऑल्सो जस्ट हाउ फूड सिस्टम्स आर स्ट्रक्चर्ड। टू गिव एन एग्जाम्पल, अगर मैं लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, केमिकल वाला खाना किसी किसान ने उगाया, आपने एक बार में उससे पूरा ट्रक भर के किसी गोडाउन में पहुंचा दिया। जब वो वहां पे पहुंचा, अब आपको वो पूरा मान लीजिए गेहूं है, आपको साल भर बेचना है, आप उस गोडाउन में बार बार फ्यूमिगेशन करते रहोगे ताकि वो गेहूं खराब ना हो। उसमें केमिकल्स डलते जाएंगे डलते जाएंगे डलते जाएंगे डलते जाएंगे, फिर आप उसको कस्टमर को बेचोगे। क्योंकि इतना इकोनॉमी ऑफ स्केल है जो कि ऑल्दो तभी हो पाया जब आपके खाने में इतने केमिकल्स ऐड हुए, पर उसकी वजह से कॉस्ट कम हो गई। हमारे केस में अगर हम गेहूं अपने किसी फार्मर कलेक्टिव से ले रहे हैं, हम उनको हर 15 दिन पे ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम उनको बोलेंगे आप 15 दिन पे गेहूं को धो, सुखाओ, साफ करो, फिर हमारे पास भेजो। हमारे पास जो गेहूं आएगा फिर वो पिसेगा। हर 15 दिन पे हमें उसका, हर हफ्ते में 2 बार हम उसका आटा भिजवाते हैं, फ्रेश आटा भिजवाते हैं, फिर 15 दिन पे आएगा। डेफिनेटली हम कम क्वांटिटी मंगाएंगे, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगी। मेंटेनेंस का कॉस्ट ज्यादा है। वहां पे कोई इंसान हर 15 दिन पे गेहूं धो रहा है,
यहाँ पे एक बार में गोडाउन में केमिकल फ्यूमिगेशन हो रहा है, कॉस्ट सेम नहीं हो सकती। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी ऑर्गेनिक की कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है। ज्यादा रहेगी, जो धीरे धीरे कम हो सकती है। लाइक एज स्वदेशी वे फॉर एग्जाम्पल एक्सपैंड्स, आई कैन सी दैट अभी अगर हमारी कोई दाल 260 रुपए kg है, आई कैन सी दैट इट कैन प्रॉब्ली बिकम 230 इफ वी ग्रो 10x. राइट। So that is possible. Third thing is, a lot of organic brands just charge a premium because their mission is not to make organic food affordable. They are also running a business. अब आप बिजनेस दो तरीके से रन कर सकते हो। एक आप रन कर सकते हो, आपको पता है हमारे देश का 0.1% कस्टमर है जिसके पास इतना पैसा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपको दे देगा पैसा। आप डबल प्राइस चार्ज कर लो, आपको डबल प्राइस दे देगा। सो अ बिजनेस मे चूज, एंड आई एम नॉट थिंकिंग एनीथिंग रॉन्ग इन इट, इट हैपेंस इन एवरी सेक्टर। लाइक से इन फैशन देयर वुड बी सम कंपनी लाइक से नाइकी और एडिडास वो सेलिंग वेरी एक्सपेंसिव शूज, दे आर केटरिंग टू अ स्पेसिफिक, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल उसका एक वो रहता है कि अगर चीज महंगी है तो अच्छी होगी, तो यूजुअली प्रीमियम प्राइस करके आप उसको और उसको पैकिंग उसकी इतनी एस्थेटिकली कर सकते हैं कि उससे एक मैसेज जा रहा है कि आप ऑर्गेनिक हैं और आप सोर्स सही कर रहे हैं। बट इट कुड जस्ट बी अ प्ले, लाइक इट जस्ट कुड बी लाइक अ कॉस्मेटिक थिंग दैट दे आर डूइंग। it could. So this is, I think what you were saying is very interesting. According to me, the real way to trust whether something is organic or not, क्या वो ब्रांड आपके साथ ट्रांसपेरेंट है। अगर वो बता पा रहे हैं कि भाई मैं आपको ये आटा बेच रहा हूँ, ये इस फार्मर ग्रुप या इस गांव से आया था, अगर वो ये आपको बता पा रहा है, फिर तो लाइकलीहुड है कि वो ऑर्गेनिक होगा। हाँ। अगर वो ये बता ही नहीं पा रहा और केवल या तो वो बोल रहा है कि मैं महंगा हूं इसलिए मुझे ट्रस्ट कर लो, मेरा पैकेट ब्राउन कलर का है देखो इसलिए मैं ऑर्गेनिक हूँ, या मेरे ऊपर बस एक सर्टिफिकेशन लगा है इसलिए मुझे ट्रस्ट कर लो, तो कुछ गड़बड़ है। सो एक्स्ट्रा प्राइस रखना इज ऑल्सो लाइक अ साइकोलॉजिकल गेम है। मुझे सवाल ना पूछे, इट इज लोग सोचेंगे यार इतना महंगा दे रहा है यार, ऑर्गेनिक तो होगा ही, तो अच्छा ही होगा। हाँ। सो अ लॉट ऑफ दैट is also there. Price gap is also because of. So I think यहाँ पे हम पिछली एक पॉडकास्ट हमने करी थी एथिकल डेयरी फार्मिंग पे, तो जो अच्छा काम कर रहे हैं ना वो हमेशा ये कहते हैं आ जाओ देख लो, आके देख लो हमारा and you must come, you must see where you're sourcing your milk from. And I think that's a very good sign to know कि the person is actually transparent or not. Yeah. Otherwise they'll not say कि आइए आप, तो he was saying to me, why don't you organize like a school trip, bring the kids to the farm, dairy farm, let them, mingle with the cows and see the calves and how we do it. And you wouldn't do it if you were not ethical and if you were not doing it properly. So I think that's a good sign that if they're transparent and they can tell you where it's coming from, how it's coming from. So I think that is a good sign rather than looking at how nicely it is packed or what kind of certification is there on the packet. Absolutely. Great. So now because we run a women health podcast, we talk about women health, we talk, that's like the focus. Nutrition is also a big part of it. So tell me a little bit more about how organic produce is actually nutritionally better than normal. Obviously, one is that obviously इतना pesticide का छिड़काव आप करोगे तो ऑब्वियसली केमिकल्स इतना ज्यादा ले रहे हो तो वो तो आपको नुकसान करेगा ही, बट न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं कि क्या न्यूट्रिशन उसका बेटर होगा बिकॉज ऑफ द सॉइल क्वालिटी और एनी अदर रीजन? सो एक्चुअली इसका वन वर्ड आंसर है हाँ बेटर होगा, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी है। और एंड आई एम जस्ट सेइंग दिस बिकॉज ऑर्गेनिक भी ना एक वर्ड बन गया है, हाँ, एज इफ कि सारा ऑर्गेनिक एक जैसा होता है, पर ऐसा सच नहीं है। ये बस ऑर्गेनिक एक वर्ड इसलिए बन गया है क्योंकि हम एज कंज्यूमर्स बहुत कन्वीनियंस चाहते हैं, हमें इतना एफर्ट करना समझना क्या चीज़ क्या है इन सब में नहीं पड़ना, तो बहुत ब्रॉडली बोलना कि क्या सारा ऑर्गेनिक न्यूट्रिशनली बेटर होगा ये जरूरी नहीं है। ओके, इन इटसेल्फ लाइक जस्ट टू एक्सप्लेन इटसेल्फ ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक कह रहा है एटलीस्ट जो लीगल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक है वो कह रहा है कोई भी ऐसी चीज जिसको उगाने में आपने केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डाले
और केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डाला, वो ऑर्गेनिक है। इसमें ये बात तो सच है कि पेस्टिसाइड नहीं डाले तो आपके लिए हाँ। सेफ होगा, करेक्ट। लेकिन सिर्फ पेस्टिसाइड ना डाल के या सिर्फ फर्टिलाइजर ना डाल के खाना न्यूट्रिशियस होगा, ये जरूरी नहीं है। आपको ध्यान देना पड़ेगा सॉइल कैसी है। सो आई मीन जस्ट टू गिव अ लाइक सॉइल में कितने, सॉइल जो है इट्स नॉट जस्ट डर्ट, या सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाई होते हैं, ये सब जो है न्यूट्रिशन प्लांट्स को देते हैं। करेक्ट। जब वो न्यूट्रिशन प्लांट्स को देते हैं तो फिर प्लांट्स अपने फ्रूट में, अपने सीड्स में वो न्यूट्रिशन ट्रांसफर करता है, जिसके थ्रू हमारे पास न्यूट्रिशन आता है। तो सॉइल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड्स कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा बीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो फार्म कितना डाइवर्स है। सो हो सकता है कोई ऑर्गेनिक फार्म हो जिसमें पूरे फार्म में बस एक ही चीज लगी हुई है, हाँ, कि आपने पूरे पे मान लीजिए सिर्फ आलू ही लगा दिया, वहां पे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज और आलू की कम होगी। पर उसी फार्म पे अगर 10-20 अलग अलग चीजें लग रही हैं तो इंटरेक्शन हो रहा है, नेचर ऑलवेज प्रेफर्स डाइवर्सिटी, क्या तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिशन बढ़ेगा। सो इफ दीज प्रिंसिपल्स, इफ द फार्मर इज टेकिंग केयर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, इफ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सॉइल, इफ दे आर टेकिंग केयर ऑफ द सीड जिससे वो खाना उग रहा है, इफ दे आर इंश्योरिंग की बायोडाइवर्सिटी है फार्म पे, तो जो खाना होगा वन वो हमेशा ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के साथ ये तीनों चीजें करी ही नहीं जा सकती, करेक्ट। एंड वो हमेशा ज्यादा न्यूट्रिशियस होगी। ओके, तो क्या वो स्वदेशी वे ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज एज वेल, की सीड क्वालिटी एंड सॉइल क्वालिटी? 100%। सो वन थिंग व्हेन, सो वन, जितनी भी फार्मर कलेक्टिव्स के साथ काम कर रहे हैं, आई पर्सनली विजिट देम ओके, एंड अंडरस्टैंड कि इनका काम करने का तरीका क्या है। अगर ये 50-100 फार्मर्स का ग्रुप है, कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि सब कर रहे हैं, किस तरीके से उन फार्मर्स को ट्रेन किया जा रहा है। अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोल्यूशन हर जगह काम कर जाए। हर एरिया का क्लाइमेट अलग है, सॉइल अलग है, कंडीशंस अलग है। हर जगह को अपनी एक प्रैक्टिस, अपना ऑर्गेनिक करने का तरीका बनाना पड़ेगा। मैं जाके समझता हूँ क्या मुझे इनका तरीका सही लग रहा है, राइट। क्या ये सच में समझ रहे हैं कि सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से ये उसको और बेटर करते जा रहे हैं, इनके अगले 2 साल 5 साल का क्या प्लान है। सो सॉइल हेल्थ पे फोकस उस फार्मर ग्रुप का है कि नहीं, उनको ये समझ भी है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज आती है सीड्स पे। सो चीजें या तो आई मीन जस्ट फॉर वेरी ब्रॉड सिंप्लीफिकेशन, या तो नेटिव देसी सीड्स की हो सकती हैं, या फिर हाइब्रिड इम्प्रूव्ड वेराइटीज आजकल काफी मार्केट में आने लगी हैं, उसकी हो सकती है। हमारे केस में 97-98% प्रोडक्ट्स जो हैं वो देसी सीड्स से उगाए गए। लार्जली हम कह सकते हैं कि जो चीज देसी बीज से उगाई गई है उस खाने में ज्यादा न्यूट्रिशन ही है जी, क्योंकि वो बीज जो है ना उस इलाके के लिए ही बना था। करेक्ट। वो अपनी नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहा है, सेंचुरीज से उस इलाके के फार्मर्स के पास ये नॉलेज है, ये विजडम है कि हाँ ये सीड हमारे लिए बेटर है। आजकल कई स्टडीज हुई हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक बहुत ही कमाल की स्टडी करी अराउंड 2 या 3 साल पहले, जहां पे उन्होंने जो ये इम्प्रूव्ड हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ राइस और व्हीट है उनको एक प्लॉट पे उगाया। ठीक है। सेम जगह पे ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले 1960s के पहले की जो देसी वेराइटीज थी उनको उगाया। सो दोनों को सेम सॉइल, सेम वेदर, सेम पानी, सब कुछ मिला। एंड फिर उन्होंने देखा कि जो व्हीट या राइस है उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी क्या है। सो जिंक, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीजें जो इम्प्रूव वेराइटीज थी उनमें 30-50% कम था। टॉक्सिक मेटल्स लाइक आर्सेनिक हाइब्रिड वेराइटीज में 15 गुना ज्यादा थे देन देसी वेराइटीज। अच्छा। तो आपका जो बीज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और टॉक्सिक मेटल्स इनकी अगर आप बात करें तो सीड्स जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट Okay. प्ले करते हैं। जिस केस में हम देसी सीड्स नहीं भी सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल
हमारा जो ग्राउंड नट है वो देसी सीड का नहीं है, एक अच्छा। राइस वैरायटी है, वहां पे भी हम इंश्योर करते हैं कि क्या ये सीड जो है उस इलाके के लिए ठीक है कि नहीं। सो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे इंप्रूव वेराइटीज खराब होंगी या फिर साइंस एकदम खराब है, साइंटिस्ट एकदम बेकार काम कर रहे हैं, पर अगर साइंटिस्ट और फार्मर्स मिलके कोई चीज समझ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टिम्बकटू कलेक्टेड जहाँ से हमारा ग्राउंडनट और ग्राउंडनट ऑयल आता है, वो इलाके में 1990s में एक ग्राउंडनट की वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी लॉन्च हुई। ठीक है। उस वैरायटी से पूरा इलाका बंजर हो गया, बंजर हो गया। बंजर हो गया। वो वैरायटी वहां के लिए अच्छी नहीं थी। सो साइंटिस्ट ऑब्वियसली जो भी वैरायटी इंट्रोड्यूस की बहुत जल्दबाजी में करे, इनफ टेस्टिंग नहीं करी। देन उन्होंने वापस एक एनजीओ अगेन टिम्बकटू ने वापस वहां पे काम करना शुरू किया, धीरे धीरे पूरे इलाकों में जंगल उगाने शुरू किए। अब उन्होंने देखा कि अच्छा अब इस इलाके के लिए कौन सी वैरायटी बेटर है, उनको एक दूसरी मॉडर्न वैरायटी ही मिली। अच्छा। जो उस इलाके के लिए बेस्ट निकली, क्योंकि उनकी देसी वैरायटीज तो जा चुकी थी। सो अगर फार्मर की विजडम और इनफ केयर के साथ कोई मॉडर्न वैरायटी आ रही है तो एक्सेप्शनल केसेस में वो सही हो सकती है। एज अ कंज्यूमर आपको अपने ब्रांड से पूछना चाहिए कि मुझे जो खाना आप बेच रहे हो क्या वो देसी बीज से आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। दे माइट हैव एन आंसर लाइक यस एंड वेयर इट इज जस्टिफाइड। करेक्ट। मोस्टली हम जो इंडिया में खाना खा रहा है वो देसी बीज का खाना है, नहीं है। अगर कोई, क्योंकि देसी बीज का खाना महंगा भी बिकता है, जैसे आप गेहूं में देखें तो खपली गेहूं, बंसी गेहूं, सोना मोती गेहूं, इनका प्राइस ज्यादा है। तो अगर कोई ब्रांड अपने फ्रंट ऑफ पैक पे नहीं लिख रहा है कि ये इंडिजिनस देसी सीड वैरायटी है तो मोस्ट लाइकली वो नहीं है। ओके ओके। सो एक्सप्लेन मी अ लिटिल बिट मोर अबाउट द सीड देन। तो एक तो हो गया आपका देसी, तो हाइब्रिड फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं और ये कहाँ से आया, और अब तो जीएमओ की बात भी होती है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि क्यों इतना हाइब्रिड यूज हो रहा है और फ्यूचर कैसा दिख रहा है। आई थिंक सबसे पहले तो ये समझने की बात है कि जो भी लोग हाइब्रिड वेराइटीज, इम्प्रूव वेराइटीज, जीएम सीड्स ला रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो ऐसा खाना बनाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। ये उनका फोकस नहीं है। वो इंटेंशनली आपको हार्म भी नहीं करना चाहते, पर उनका फोकस ये नहीं है कि हम न्यूट्रिशियस खाना बनाए। उनका फोकस है कि हम कैसे ऐसा बीज लाएं जिससे प्रोडक्शन ज्यादा। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो बीज आते हैं इनसे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा और फार्मर का फायदा होगा। इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। तो इसमें आई मीन जस्ट टू एक्सप्लेन कि वर्क कैसे करता है, आई वुड से एक तो इस सबके पीछे ना एक आई वुड से सबसे इंपॉर्टेंट है वो फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हाँ जी। आप लाइफ में क्या बिलीव कर रहे हो। दुनिया दो तरीकों से चल सकती है। पहले तरीकों से चल सकती है जैसे हमारे एंसेस्टर्स चल रहे थे, या जो ये ऑर्गेनिक फार्मर्स, नेचुरल फार्मर्स आज भी जैसे चल रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि नेचर सुप्रीम है और हमारा काम है नेचर नॉट जस्ट सुप्रीम, नेचर सुप्रीम है, नेचर में एक हार्मनी है, नेचर में एक बैलेंस है, नेचर में अबंडेंस है, नेचर में इनफ है हम सबके लिए। हमको बस सुनना है, नेचर की कॉल सुननी है, वो क्या चाहता है हमसे और हमें बस वो करना है। हम उस तरीके से खाना उगाएंगे तो अपने आप सब चीज हो जाएगा। हमें बस ये इंश्योर करना है नेचर को डिस्टर्ब मत करो, ज्यादा बैलेंस नेचर का खराब ना करो। ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग इस प्रीमाइस के ऊपर बिल्ट है। एक दूसरा प्रीमाइस है जो कहता है कि नेचर हमारा दोस्त नहीं है, नेचर और हमारे बीच में एक वॉर चल रही है और इंसान को वो वॉर जीतनी है। जब हम इस लेंस से अपनी दुनिया को देखेंगे तो हमें हर चीज में दुश्मन दिखेंगे। अगर किसी फार्म पे कीड़े आ गए तो वो दुश्मन दिखेंगे। मुझे चाहिए कि इस सॉइल से इतना टन गेहूं निकल आए, इतना अगर नहीं निकल रहा तो सॉइल दुश्मन है मेरी। अब मेरा काम है उसको कंट्रोल करना, पेस्ट को कंट्रोल करना, पेस्ट को मार देना, वीड्स। मैं चाहता हूं गेहूं उगे, साथ में 4 पौधे और उग रहे हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे लिए वो सब मेरे एनिमी हो चुके हैं।
जो इंडस्ट्रियल फार्मिंग है हम्म, या जो केमिकल फार्मिंग है वो प्राइमरीली इस फिलॉसफी पे बेस्ड है कि हम नेचर के साथ एक वॉर लड़ रहे हैं। पिछले 60-70 सालों से ये वॉर लड़ी ही जा रही है एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग। जो कंपनीज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे केमिकल वेपन्स बनाती थी वो कंपनीज पेस्टिसाइड्स बनाने लग गए। सो इट इज नॉट जस्ट metaphorically war hai. It is actually people who are contributing to World War II are now creating these fungicides, pesticides and weedicides जो फिर हमारे खाने में आ रहा है। तो जब हम सैड बात ये है कि ये जो तरीका है ना सोचने कि हम नेचर से वॉर पे हैं, ये एक्चुअली दुनिया का सच नहीं। दुनिया में नेचर में अबंडेंस है और जब आप नेचर से लड़ाई करोगे तो हार हमेशा आपकी ही होगी। सो हुआ क्या, एंड फॉर वेरी राइट रीजंस आई वुड से ग्रीन रेवोल्यूशन आया हमारे देश में, क्योंकि हमारे देश में बिकॉज ऑफ ऑल द कॉलोनियलिज्म दैट वी हैड, हमारा फूड सिस्टम जो इंडिजियस फूड सिस्टम था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। लाइक इट वाज ऑन वेंटिलेटर, इट नीडेड समथिंग टू रिवाइव। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लाइक दैट वेंटिलेटर सिस्टम कि हाँ यार सीड्स बदलो, फर्टिलाइजर डालो, क्योंकि सॉइल में कुछ बचा ही नहीं है कई जगहों पे और इतनी सारी पॉपुलेशन इतने एकदम से बढ़ गई, इतने लोगों को खाना खिलाना है, भूखमरी है। इट वॉज वेरी मच नीडेड फॉर दैट टाइम, वेरी गुड सोल्यूशन। द सैड पार्ट इज हमने उसको पॉज नहीं किया या हमने वापस क्वेश्चन नहीं किया कि अब तो हमारे देश में इनफ खाना आ गया है, अब हम न्यूट्रिशियस खाना कैसे लाएं, इस पे सोचते हैं ना। अब हम अपनी पॉपुलेशन को, अपनी जनता को न्यूट्रिशियस हेल्दी बनाते हैं। हमारे पास इनफ खाना है, इस वक्त हमारे गोडाउन सारे अनाज के भरे पड़े हैं, लेकिन अनाज में केवल कैलोरी बची है, न्यूट्रिशन नहीं बचा है। तो ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं ये इसलिए आए कि कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़े। अब वो क्या करते हैं, किसी साइंटिस्ट ने एक स्पेसिफिक कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि यहाँ एक नई वैरायटी ऑफ सीड्स लॉन्च किए, उनके एक्सपेरिमेंट्स में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कुछ साल तक वो दिखेगा भी कि हाँ प्रोडक्टिविटी बढ़ी, मे बी दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट, लेकिन धीरे धीरे नेचर जो अपने आप वापस बैलेंस में आ जाएगा। कोई और इंसेक्ट्स उस फार्म पे आने लगेंगे, उसको फिर उसके अगेंस्ट ये हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड काम नहीं करेगा। फिर साइंटिस्ट कहेंगे यार ये वाला हाइब्रिड वैरायटी अब काम नहीं कर रहा, अब मैं एक और वैरायटी लेके आता हूँ। फिर वो आएगा, फिर नेचर में कुछ और चेंजेस होंगे, फिर ये वैरायटी काम नहीं करेगा। ये होते जा रहा है, हम हारते जा रहे हैं। फोकस सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे रहा इतने टाइम, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है खाने की वो कम होते जा रही है, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कोई ये ध्यान, हमको बस ये देखना है कि गेहूं कितना निकला, हम ये नहीं देख रहे कि उस गेहूं के पौधे में और क्या चेंजेस हुए, क्या उसके सीड्स में क्या चेंज हुए, उसके प्लांट में क्या चेंज हुए। हमें बस देखना गेहूं कितना निकला, और अगर किसी क्रॉप का नेचुरल साइकिल 3 महीने का है, कैसे मैं उसको 2 महीना कर दूं। फास्ट भी चाहिए, एंड फार्मर्स को तो ब्लेम करना नहीं चाहिए, हमें यहाँ 10 मिनट में डिलीवरी चाहिए, तो जो हमको चाहिए वही उनको भी चाहिए। हर कोई ज्यादा कन्वीनियंस चाह रहा है और उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। जीएम सीड्स जो हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स जो हैं, ये और भी मैसिव और मैग्निफाइड तरीका है उसी नेचर को कंट्रोल में लाने का। टू गिव एन एग्जाम्पल, इंडिया में ऑल्दो फूड क्रॉप्स में, थैंक्स टू ऑल द फूड एक्टिविस्ट्स एंड फार्म एक्टिविस्ट, और इंडिया में एक मैसिव रेवोल्यूशन चल रहा है जिसकी वजह से अभी भी हम बचे हुए हैं। देयर आर सो मेनी अनसेड हीरोज, मेनी ऑफ देम कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग दीज फार्मर कलेक्टिव्स। उनके कितने स्ट्रॉन्ग एक्टिव रेजिस्टेंस की वजह से जीएम सीड्स अभी तक हमारे देश में खाने में नहीं आए। पर जैसे कॉटन में बीटी कॉटन इज अ जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन, जो इंडिया में ग्रो होता है, वो भी जब इंडिया में आया तो जीएम सीड होता क्या है, प्लांट का जो जीन है उसको आप मॉडिफाई कर देते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इन बीटी कॉटन उन्होंने एक बैक्टीरिया का जीन लिया और कॉटन का जीन लिया, उस बैक्टीरिया के जीन का एक पार्ट कॉटन के जीन में मिक्स कर दिया, ऐड कर दिया, एंड वो ऐसे टेस्ट कुछ ऐड करते रहेंगे। सम विल वर्क कि अच्छा इससे ये चीज बच गई, इन द से दिस वन इज गुड। सो इन दिस केस बीटी कॉटन
कॉटन में एक स्पेसिफिक वॉर्म्स आते हैं, आई थिंक उन्हें बॉल वॉर्म्स कहते हैं. सो बीटी कॉटन आया कि ये जो कॉटन है ये इसमें ये वाला कीड़ा नहीं लगता. अच्छा. एंड बहुत पॉपुलर हुआ. ऑलमोस्ट सारा कॉटन जो इंडिया में ग्रो हो रहा है वो सारा वही है. वो जीएम कॉटन. कुछ सालों तक कीड़े नहीं लगे. अब क्या हो रहा है, वो जो वॉर्म था वो भी तो ऐसे खाली नहीं बैठा है ना, उसका भी जब इवोल्यूशन हो रहा है वो भी समझ रहा है अच्छा अब मैं क्या करूं. नेचर उसको भी इवॉल्व कर रहा है. अब नई वेराइटीज ऑफ वॉर्म्स आने लग गए जो बीटी कॉटन को नुकसान पहुंचा सकते हैं. पहुंचा रहे हैं. अब वो बीटी कॉटन काम नहीं कर रहा है इंडिया में. और पहले उन लोगों ने बोलते थे कि बीटी कॉटन का सीड लगाओगे तो उसमें पेस्टिसाइड डालने पड़ेंगे क्योंकि कीड़े ही नहीं आएंगे. अब बीटी कॉटन में भी पेस्टिसाइड डालने पड़ रहे हैं. तो आपको आप खाना भी मॉडिफाई हो चुका है जेनेटिकली, प्लस उसमें पेस्टिसाइड भी आ रहे हैं, प्लस फार्मर का भी फायदा नहीं हो रहा. हाँ. सो इफ यू सी एनी सच एक्सपेरिमेंट which humanity has done thinking that we have won the game the game over nature in 10 years time yeah shows you the face कि दोस्त तुम इंसान हो, तुम इस बहुत बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा हो. yeah और तुम्हें अपनी जगह पता होनी जरूरी है. जब तुम्हें अपनी जगह पता होगी तभी तुम मेरी तरफ ग्रैटिट्यूड से देखोगे और मैं तुम्हें जितना दे रहा हूं उसको जेनरसली ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट कर सकोगे. थैंक यू यार आप मुझे इतना दे रहे हो. सो सैडली हम ये कर रहे हैं. फूड के केस में जीएम मस्टर्ड आने वाला था, बट अगेन इट हैज बीन that's good at least इट हैज बीन ब्लॉक्ड. दूसरी कंट्रीज में काफी जीएम फूड्स ग्रो होते हैं. सो लाइक सोया में काफी जीएम होता है. सो इफ वी आर ईटिंग थिंग्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड then we need to be worried about GM. Otherwise, we are good. There is new thing which is coming, which is called thing. So GM में क्या होता है, आप बैक्टीरिया का जीन डाल दे रहे हो. आप साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं कोई दूसरा जीन नहीं डालूंगा, मैं इसके जीन में से बस कुछ निकाल लूंगा, कुछ एडिट कर दूंगा इसके जीन को. एंड हैंस इट्स नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड. सो इसको उतना स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग इसकी नहीं होनी चाहिए. इसको जेनेटिकली एडिटेड. सो राइस की कोई ऐसी वेराइटीज आ रही हैं, अगेन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किए कि आपने इनफ रिसर्च और टेस्टिंग के बाद बिना किए आप उसको रिलीज कर रहे हो फार्म्स में. सो इट हैज बीन पॉज्ड थैंकफुली. लेट्स सी अंटिल व्हेन वी आर एबल टू बी सेव्ड फ्रॉम इट. माय वरी इज दैट जब आएगा तब तो सब लोग बहुत, एंड देयर इज आल्सो सो मच money which pumps into these things. There's such huge companies which are doing all the advertising with the farmers, lobbying the government. Sadly, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका असर हमें शायद ना दिखे, हमारे बच्चों को दिखे 10 साल 15 साल 20 साल बाद दिखे. तो हम जो फूड चॉइसेस अभी हम ले रहे हैं स्पेशली ऑन सीड्स, हम ये केवल ये ना सोचें कि मेरे को चलो 30% जिंक एक्स्ट्रा मिल गया, मेरा आर्सेनिक 15x कम हो गया. हम चॉइस लेते टाइम अगर ये याद रखेंगे कि हम फार्मर के लिए, नेचर के लिए और अपनी फ्यूचर जनरेशंस के लिए आज चॉइस ले रहे हैं, क्योंकि आज हम ये डिमांड क्रिएट नहीं करेंगे तो कल हमारा खाना और कूड़ा ही होगा. एंड ये याद रख के अगर चॉइस लेंगे ना, तो ये चॉइस के लिए अगर 10 रुपए एक्स्ट्रा भी खर्च करना पड़ रहा है तो वो दिल को चुभेगा. बिल्कुल. तो this is very well explained कि I think the solution is कि we come back to the desi seeds, stick around desi seeds. The other thing that you said कि soil quality अगर improve होगी with using diversified crops, then that is going to add to the nutrition. And the third thing is if it's organic, then it will also increase the nutrition on the plate. So now I wanted to understand this that जो पेस्टिसाइड्स है, जैसे कई लोग कहते हैं कितना ही पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में आ रहा होगा, ये तो वैसे भी कंट्रोल्ड है, ये तो मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इसका तो छोटा सा क्वांटिटी जाता है, इससे क्या होता होगा. पर explain me कि how pesticides in the long term can actually have an impact on your health. And also from women health point of view, you know, we know that hormonal imbalance is a big thing. 1 in 5 women in India are suffering from PCOS. Thyroid is another one which is on the rise.
And there's one factor to this is the exposure to the chemicals through pollutants and through the food that we are eating, which is contaminated. So explain a little bit about the long-term health impacts of pesticide use in the normal food that we are eating. I think सबसे पहले even when I enter, either before I explain this in detail, सबसे पहले तो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगती है ना कि हम, ये तो हर किसी को पता है पेस्टिसाइड जहर है, हाँ, ये भी हर किसी को पता है बहुत नहीं जा रहा, थोड़ा तो जा रहा हाँ, है ना। हमें इतना ज्यादा इस बात से फर्क पड़ता है कि यार इतना जा रहा है कि इतना जा रहा है, हम ये मोल भाव कर ही क्यों रहे, हाँ, ये मुझे समझ नहीं आता। मतलब आप किसी किसान, जैसे मैंने बताया, आप किसी किसान से मिलो ना, अपने घर के फैमिली के खाने में वो पेस्टिसाइड नहीं डालेगा, कभी नहीं डालेगा, लेकिन वो जो मार्केट में बेच रहा है वो उसकी मजबूरी है कि उसको डालना पड़ रहा है। करेक्ट। वो मोल भाव नहीं कर रहा कि एक काम करके अपने घर खाने में ना थोड़ा सा डाल देता हूँ, थोड़े रेसिड्यू से क्या ही फर्क पड़ेगा। करेक्ट। ऐसा वो क्यों नहीं करता? क्योंकि वो स्पाम पे रह रहा है, उसका एक कनेक्शन है, उसको दिख रहा है कितना नुकसान है। जब आपका किसी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, तो आप ये नंबर के गेम में नहीं पड़ते कि अच्छा कैल्शियम 30% कम हो गया क्या, पेस्टिसाइड 10% बढ़ गया क्या। जब आप शहर में इतने दूर होते हो कि आपको कुछ भी नहीं पता है कि खाना कैसे हो रहा है, तब आप ये सब नंबर में घुसते हो। अदरवाइज आपको रियलिटी पता है यार, जहर है, नहीं चाहिए। शहर वालों को तो और नहीं चाहिए होना चाहिए। आपका क्या साफ बचा है? हमारा हवा खराब, हमारा पानी खराब, ये सबसे हमारी बॉडी पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है। हम इतना ज्यादा ओवरवर्क्ड है, इतना और लाइफ में दूसरी चीजों से स्ट्रेस आ रहा है, ये सब हमारी बॉडी पे ऑलरेडी असर डाल रहा है। उसके बाद एक चीज बचा है खाना, उसमें भी अगर हम मोल भाव करेंगे कि यार इतना सा पेस्टिसाइड आ जाएगा, इतना सा टॉक्सिन आ जाएगा बॉडी में तो चलेगा। ये मतलब बेवकूफी है। ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें रियलाइज ही नहीं हो कि हम अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये तो आई थिंक ब्रॉडली मैं कहूंगा कि इवन अगर किसी को डिटेल में नहीं भी समझना है, जो चीज हाथ में है उसको तो ध्यान रख लो। अब आते हैं कि एक्चुअल ये अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली देखें कि पेस्टिसाइड्स खराब हैं कि नहीं। सो फर्स्ट चीज है, पेस्टिसाइड्स जब भी कोई साइंटिस्ट बनाते हैं, उनका काम है कीड़ों को या अनवांटेड प्लांट्स को या फंगस को मारना है। मारने का कोई भी प्यार का तरीका नहीं होता है। इंसेक्ट्स को मारना है तो आपको उनको कुछ डालना पड़ेगा जिससे उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाए। करेक्ट। प्लांट्स को मारना है तो आपको कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जिससे वो अमीनो एसिड्स ब्रेक हो जाएं, वो ग्रो ना कर सकें। फंगी को किल करना पड़ेगा कि वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब हो जाए। तो मारने के तो यही तरीके हैं, सारे तरीके जहर है। अब while humans are different from insects, plants or fungus, there is commonality as well. Yeah. And इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है फार्मर्स पे। हर साल 30 लाख से ज्यादा किसान बीमार पड़ते हैं बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड एक्सपोजर। एंड दिस इज तुरंत बीमार पड़ना कि नोजिया, इस तरीके की चीजें। उनका जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर उन पे हो रहा है, उससे जो असर पड़ रहा है वो कोई वेरीफाई नहीं कर सकता। पर अगर आपने सुना होगा पंजाब से कैंसर ट्रेन चलती है, क्यों चल रही है? मतलब इट इज एविडेंट एक इलाके में इतना कैंसर क्यों हो रहा है, एंड इट इज लाइक एन ओपन सीक्रेट दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज उस इलाके में पेस्टिसाइड इतना डाला जाता है। अब अगर मैं बोलूं कि इसको साइंटिफिकली प्रूव करो, कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। कोई बोलेगा अरे इस वजह से नहीं हो रहा है, किसी और वजह से हो रहा है। इट्स लाइक सेइंग दिल्ली का एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है। आधे लोग कहेंगे ट्रैफिक की वजह से बढ़ रहा है, कोई बोलेगा पराली की वजह से बढ़ रहा है, कोई बोलेगा कंस्ट्रक्शन की वजह से चल रहा है। देयर इज नो वे टू प्रूव, बट इट इज एन ओपन ट्रुथ। आंख खोल के देखोगे तो दिखेगा उनको इसी वजह से हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि जब हम पेस्टिसाइड पेस्ट कंट्रोल कराते हैं घर के अंदर, होता है ना कि कॉकरोच वगैरह के लिए जो पेस्ट कंट्रोल होता है, तो जब हम अपने घर में करवाते हैं तो वी एम्प्टी द हाउस कंप्लीटली फॉर 3 days। व्हेन वी आर ट्रैवलिंग और समथिंग वी आस्क देम पीछे से आके करके जाना।
3 दिन तक आप वहां घुस नहीं सकते क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग ओडर होता है उसका कि आपको उसी टाइम नोजिया, you feel breathless, you are not able to breathe properly and all that. So that's like an example of what the farmers are actually experiencing on a daily basis when they are spraying it. But then when it is coming to your house, obviously you don't feel it, but उसका microdosing तो आप कर ही रहे हो on a daily basis. Exactly. So जो असर उन पे जल्दी दिख रहा है, हाँ. वही असर माइक्रोडोजिंग की वजह से हम पे बाद में दिखेगा. आप कभी भी ये गारंटी दे पाओगे अच्छा मुझे कैंसर हो गया बिकॉज मैंने ये खाना, हाँ. बट इट इज ऑब्वियस Yes. कि आप माइक्रोडोज कर रहे हो इसकी, जिसका असर आपकी बॉडी पे क्यों नहीं पड़ेगा. आपकी बॉडी एक अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स ही रिमूव कर सकती है, उसके ऊपर इट विल इम्पैक्ट यू. सो दैट इज हैपनिंग विद पेस्टिसाइड्स एज वेल. एंड या वेरी सैड. एंड आई थिंक व्हाट यू सेड इज ऑल्सो, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया ये भी काफी रेलेवेंट है. जब हम घर पे कराते हैं हमें कितने प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. सिमिलरली जब फार्म पे पेस्टिसाइड छिड़का जा रहा है तो जो पेस्टिसाइड वाली कंपनी है वो एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देगी, Okay. इस तरीके से करो. कोई नहीं करता उस तरीके से. मतलब अगर उन्होंने बोला कि इतना ही पेस्टिसाइड डालो, कितना भी डाला जा सकता है. हाँ पैसे टैग आ गया, वो ये थोड़ी दिख रहा है मैनुअल में क्या लिखा है. वो तो भाई अपनी क्रॉप बचाएगा, उसको जितना डालना पड़े उतना पेस्टिसाइड डालेगा. तो जितने भी ये स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना कि ये पेस्टिसाइड सेफ है, वो इन सब अजम्पशन पे बनते हैं कि पेस्टिसाइड इतनी क्वांटिटी में ही डाला गया, एक क्रॉप पे इतनी बार ही डाला गया, कंज्यूमर को जो खाना मिल रहा है उसके एटलीस्ट इतने दिन पहले पेस्टिसाइड डालना छोड़ दिया गया. इन रियलिटी इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा. पेस्टिसाइड हर बार ज्यादा डाला जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली डाला जाता है. मैंगो लीचीज के एक सीजन में 15-15, 20-20 बार पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है. राइस में 10-10 बार पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है. तो हर बार ज्यादा डाला जाता है, ज्यादा फ्रीक्वेंटली डाला जाता है, और किसी फार्मर को ये चिंता नहीं है कि अच्छा फॉर एग्जाम्पल सब्जियों के केस में हार्वेस्ट हुई कुछ दिनों के अंदर आप खा रहे हो, कहा जाएगा कि 1 महीना पीरियड में कोई पेस्टिसाइड ना डाला जाए. कोई फार्मर ये नहीं सोचा. हर क्रॉप का एक अलग पेस्टिसाइड बना है. फॉर एग्जाम्पल शुगर केन के लिए ज्यादा टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स अलाउड है. क्योंकि आप शुगर केन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर रहे, उसका एक हार्ड स्किन होता है. करेक्ट. इतने प्रोसेसिंग और रिफाइनमेंट के बाद शुगर बनती है जो आप कंज्यूम करते हो. वो पेस्टिसाइड सब्जियों पर डालना अलाउड नहीं है. लेकिन अगर आप गांव में जाओगे वही शुगर केन वाला पेस्टिसाइड फार्मर सब्जियों को भी डाल रहा है क्योंकि वो ज्यादा जहरीला है. तो वो ज्यादा इफेक्टिव है पेस्ट को मारने में. तो कहेंगे यार मैं शुगर केन पे क्यों डालूं यार, मेरे पास गन्ने के टाइम पे उगाया था रखा हुआ है, उधर भी डाल देते हैं. 2 दिन बाद आपको मंडी में मिलेगा, आप खरीदो यार बढ़िया पॉलिश्ड एकदम चमकती हुई सब्जी है, खा लेते हैं. सो yeah, I mean it's very obvious that it's impacting our health for sure. It is very obvious. And coming to the women's health part, these pesticides are meant to damage insects' nervous system. When they come into our body, they create hormonal imbalance. It is proven that it is proven for many pesticides that they are endocrine disruptors. Yeah. So they will create imbalance in our hormones. कई सारे पेस्टिसाइड के लिए अभी प्रूव नहीं है. ऐसा बहुत बार हुआ है, पेस्टिसाइड्स अप्रूव हुए 5 साल बाद 10 साल बाद पता चला कि अरे ये तो सब खराब थे और उनको बैन कर दिया गया. कितने बैंड पेस्टिसाइड्स इंडिया में यूज होते हैं. तो दिस सिस्टम इज वेरी मर्की. एज अ कंज्यूमर द ओनली वे, एंड इट्स गेटिंग मर्कियर. हम कुछ बेहतर डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं. हम और गड्ढे नहीं गिरते जा रहे. सो एज अ कंज्यूमर one line advice is eat food जिसमें पेस्टिसाइड ना डालें तो बेटर है. तो 1960 से अभी 2020 तक हम एक तरीके का हमको आदत डाल दी गई है. ब्लिंकिट एंड जोमेटो एंड क्विक फूड एंड क्विक सप्लाई, चीपर, 30% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट. तो एक आदत हो गई है हमें कि एक तरीके से कंज्यूम करने की. तो अगेन व्हेन वी आर ट्राइंग टू एजुकेट पीपल टू ईट मोर ऑर्गेनिक, वी नीड टू चेंज देयर हैबिट्स, राइट, अ लिटिल बिट, कि वो किस तरीके से हैबिचुएट हों कि ये ऑर्गेनिक जो है ये नॉर्मल नहीं है, इसमें कभी कभी आप कीड़ा भी लग सकता है,
तो किस तरीके से कंज्यूमर शुड एक्चुअली, व्हाट आर द थिंग्स दैट द कंज्यूमर शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर हम ऑर्गेनिक खाएंगे तो हमें ये चीजों को के साथ हमें हैबिट डालनी पड़ेगी कि ये सब होगा, ऐसी कौन सी चीजें हैं? आई थिंक 2 लेवल पे इसका देखना होगा। पहली चीज तो है, अगर आप किसी जेन्युइन ऑर्गेनिक ब्रांड को ढूंढने की कोशिश करेंगे हाँ, तो मोस्ट लाइकली वो आपको ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट पे नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर हम एक सिंपल इंडिकेटर डाल रहे हैं, ऐसा ब्रांड जो ट्रांसपेरेंटली बताए कि खाना कहाँ से आ रहा है, या आप उसको पैकेट पे उसने नहीं भी लिखा, हाँ, पर आपने उसको कॉल किया, हाँ, बोला आप 10 चीजें बेचते हो, पैकेट पे नहीं लिखा, चलो ठीक है, मुझे खुद बता सकते हो क्या? जो भी लोग आपके इस टेस्ट को पास करेंगे, 99.9% चांस है कि वो आपको ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, अमेजोन पे नहीं मिलेंगे। ओके, इसका मतलब आपको खरीदने में थोड़ी इनकन्वीनियंस लेनी पड़ेगी। हो सकता है वो आपके इलाके में वो आपको नेक्स्ट डिलीवर करते हैं। सो वन इज परचेजिंग इनकन्वीनियंस, जो ठीक है। आपको रेडी होना पड़ेगा। ऑल्दो आई वुड से इफ यूर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, आई एम वेरी श्योर यू विल फाइंड एटलीस्ट वन जो आपको नेक्स्ट डे तो डिलीवर करते कर ही देगा। तो ऐसा भी कोई बहुत पहाड़ इनकन्वीनियंस नहीं हो रहा है। 4-5 साल पहले हम ऐसे ही करते थे। हाँ, तो बस वहां तक हमको जाना है। दूसरा है, ऑर्गेनिक फूड डज रिक्वायर मोर केयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा, ऐसा हो सकता है कि आपको ठीक से रखना पड़े आपको खाने को। यू नीड टू बी केयरफुल कि आप खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख रहे हैं। अभी हमें आदत हो गई है कि हम 3-3, 4-4 महीने का सामान एक ही साथ मंगा लेते हैं। हाँ, अरे कहाँ पड़ा है किचन में, बहुत जगह है किचन में, वार्डरोब्स बनी हुई हैं, कुछ खराब वराब तो होगा नहीं। ऑर्गेनिक के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते। राइट। आपको इवन फॉर योर ग्रेन्स और लाइक एनीथिंग नॉन पेरिशेबल, आपको एटलीस्ट हर महीने मंगाना चाहिए। यू नीड टू बी माइंडफुल। अच्छा, कोई चीज ज्यादा पुरानी हो रही है देन आपको उसको फ्रिज में रखना होगा, ओके, ताकि उसमें इंसेक्ट्स ना लगें। किसी चीज में इंसेक्ट्स आए तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, थोड़ा धूप दिखा दो, हाँ, insects चले जाएंगे. You can also put them in a freezer. Insects will get killed and then you can clean it manually. But it also, I would say, it happens very rarely. Like in our case, कि किसी हमने प्रोडक्ट को बेचा कस्टमर को, उसने इंसेक्ट की कंप्लेन करी, that happens like 0.1% टाइम. राइट। So आपके साथ 1000 में से एक बार हुआ. पर कई लोग क्या करते हैं, 1000 में से एक बार भी हुआ ना तो गिव अप मार देते हैं। हाँ, कि यार ये तो सड़ा खाना दे रहा होगा तभी कीड़े आ गए। नहीं भाई, आपको अच्छा खाना दिया तभी उस कीड़े ने सोचा कि ये खाना खाने लायक है। क्योंकि कीड़ा तो इंटेलिजेंट है ना, दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे विल गो एंड फाइंड अ वे टू रीच टू द पर्टिकुलर फूड। ओके, सो वन इज दैट, एंड देन हमारे यहाँ कई क्वेश्चंस जो नॉर्मली आते हैं वो ये है कि राइस वेराइटीज जैसे फॉर एग्जांपल है, तो ऐसी कौन सी राइस वेराइटीज हैं जो कि हम सेफली ले सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जिसमें छिड़काव ना हो? Even if it's on Amazon, can we find these varieties everywhere? And are there any particular varieties that you think are actually good, that इतनी खराब नहीं हुई है जिसकी क्वालिटी? आई वुड एक्चुअली से, अगर आप कोई भी देसी वैरायटी का सामान खरीदोगे, इवन दो इफ दे आर नॉट क्लेमिंग दैट दे आर ऑर्गेनिक, हाँ, उसमें डेफिनेटली कम तो पड़ाओ। अच्छा, बिकॉज देसी सीड्स जो होते हैं वो नेचुरली ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। हाँ, उन्हें उतना फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें इतना पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती। सो इवन इफ यू कांट फाइंड एन ऑर्गेनिक फूड ब्रांड दैट यू कैन ट्रस्ट, go for desi seed or indigenous seeds. For rice, there is so many varieties. South में तो thankfully हमारे farmers ने इतनी सारी varieties preserve करी हुई हैं, brown rice की, red rice की, semi polished white rice की. All those are great. Few names that you would like to give? Like there's a Navara rice which is a red rice. Okay. It is very nutritious. केरला का एक गंधकशाला राइस है। Okay. हम जहाँ छत्तीसगढ़ में काम करते हैं वहाँ पे जावा फूल एक एरोमेटिक राइस है, सेमी पॉलिश्ड वाइट राइस। हम आंध्र प्रदेश में हम एक चेनांगी रेड राइस आता है। अच्छा। नॉर्थ में काला नमक राइस है गोरखपुर का, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। सो आई वुड से
ब्रॉडली आई वुड से अगर आप कोई भी देसी राइस वैरायटी का राइस खा रहे हो, यू आर In the safe zone, at least. प्रीटी गुड Okay. जोन. जितना डाइवर्स आप खाएंगे हम्म. उतना ज्यादा अच्छा है. इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं काला नमक ही अच्छा है, अब इसी को ही आप सारे टाइम खाएं, इससे अच्छा आई वुड से यू हैव मोर डाइवर्सिटी. Right. If you can have brown rice or red rice, from a nutrition point of view, it is way better than the best of white rice. Correct. It has more fiber, more micronutrients. So your choices in this way also Can make a difference. also matter a lot. What about wheat? Like one of the most controversial things, like gluten allergy आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को हो रही है. लोग ग्लूटेन बंद कर रहे हैं खाना. तो ग्लूटेन का क्या स्टोरी है, या क्या ये ग्लूटेन है जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहा है, या फिर उसके ऊपर जो छिड़काव होता है वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है, जो मतलब ग्लाइसोफेट जो है जिसका बहुत ज्यादा चर्चा होती है कि दैट इज कॉजिंग the real damage to how you are actually digesting gluten. So can you tell a little bit about that कि gluten खराब है या gluten की कुछ ऐसी varieties हैं जो कि better हैं? So it's actually both. अच्छा. जो है what has also happened is हमारे wheat varieties जैसे जैसे नई varieties आई, हाँ जी. तो हमारी wheat varieties का जो structure है वो भी बदल रहा है. सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ग्लूटेन कितना है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि उस ग्लूटेन का क्या स्ट्रक्चर है. ओके. वीट के अंदर. सो जो पुरानी वीट वैरायटीज है, खपली वीट हो गया, सोनामोती वीट हो गया, बंसी वीट हो गया, दे मे हैव सिमिलर लेवल ऑफ ग्लूटेन, लाइक 10% 20% कम होगा, बट ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली बहुत कम होगा ग्लूटेन उनमें देन अ मॉडर्न वेराइटी. बट उनका जो ग्लूटेन है उसका स्ट्रक्चर इज मोर कंड्यूसिव फॉर अस. अच्छा. सो दैट्स व्हाई डाइजेशन में उतने इश्यूज नहीं होते. जैसे जैसे नई वेराइटीज आते गई उनका स्ट्रक्चर चेंज होता गया, उनका जो टाइप ऑफ ग्लूटेन है वो हमारे लिए इतना सूटेबल नहीं है, right. जिसकी वजह से ये असर पड़ रहा है. एंड ईजी वे इज अगेन आई वुड से सिंपल, स्विच टू एनी देसी व्हीट वेराइटी, ईट इट एंड देन सी हाउ इट वर्क्स फॉर यू. People are also very choosy about taste, texture of आटा. Like खपली गेहूं, सोनामोती गेहूं, बंसी गेहूं, हर किसी की रोटी अलग बनेगी. हाँ. हर किसी का आटा आपको थोड़ा अलग तरीके से गूंथना पड़ेगा. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस रोटी के लिए तो स्पेशली भाई हम बहुत डाई हार्ड जज्बात जुड़ा हुआ है रोटी के साथ. तो स्विच टू एनी indigenous desi wheat variety, see which one goes well with your kitchen, and then you can stick to it. एक दिक्कत ये हुई है कि हम wheat ही ज्यादा खा रहे हैं. हाँ. पहले के कंपैरिजन में. सो अगर हम wheat कम कर देंगे अपने फूड में और मे बी दूसरी चीजें लाइक मिलेट्स, ब्राउन राइस, रेड राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये सब बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल ग्लूटेन जो हमारे खाने में आ रहा है वो कम हो जाएगा. एंड आई जस्ट वांट टू हाईलाइट दिस थिंग अगेन. हम लोग ना somehow हम हमेशा एक मैजिक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मुझको अपने खाने में कुछ ना बदलना पड़े, मैं बस ये एक चीज बदल दूं और सब चीज ठीक हो जाए. एंड द कंपनीज आर जस्ट एक्सप्लॉइटिंग यू ऑन दिस. फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे काला नमक राइस बिकता है, लोग बोलते हैं डायबिटिक फ्रेंडली राइस, लो ग्लाइसेमिक राइस, इसमें बकवास है. इट इज डेफिनेटली बेटर देन अ नॉर्मल राइस, बट यू कांट कॉल इट कि डायबिटिक फ्रेंडली. हाँ भाई डायबिटीज है, काला नमक राइस खाओ, डायबिटीज ठीक हो जाएगी. बिल्कुल ऐसे नहीं होने वाला. सिमिलरली एनी खपली वीट और एनीथिंग इज बेटर देन अदर वीट. बट अगर आप बोलो कि मैं अपना बाकी खाना नहीं बदलूंगा, अपना गेहूं कम नहीं करूंगा, तो फिर आपकी जिंदगी में वो जब हेल्थ बेनिफिट लाने की सोच रहे हो वो नहीं आएगा. So I think that the key point is diversity, which is what you were talking in terms of soil also. जब हमने बात करी तो हमने कहा diversity जितनी होगी soil में उतना आपका quality of produce will be better. And similarly, the more diverse the food that you are eating, the better
your gut microbiome will be, because again जो gut microbiome आपके body के अंदर है वो भी diversity पे ही survive करता है. So what you're trying to say is that try to keep changing the kind of grains and dals that you're eating. The more variety, the better it will be for you. Now, the other question that a lot of people say कि organic हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है. हमें मालूम है कि ये organic नहीं है और हमारे घर में आ रहा है. So what are the few practical tips that you can give? अगर खाना नहीं है ऑर्गेनिक तो उसको किस तरीके से हम मतलब डैमेज कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक सोर्स नहीं है, सो वन, try to move to indigenous seed as much as possible. Right. That is very easy. Second, सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में डाला जाता है. Correct. So if you can switch to anything organic, I would say fruits and vegetables पे आप स्विच करेंगे तो बेटर है. अगर आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा फ्रूट कौन सा वेजिटेबल ऑर्गेनिक है कौन सा नहीं है, फर्स्ट थिंग इज ईट व्हाट इज सीजनल. बेस्ट है. जो चीज सीजनल होगी उसमें कम पेस्टिसाइड डाला होगा. जो चीज लोकल होगी उसमें कम केमिकल्स एडेड होंगे. अगर आपका कोई फ्रूट बहुत दूर से आ रहा है, उसको बस प्रिजर्व करने के लिए कि वो आप तक आते आते भी उतना ही चमकदार दिखे, उसको कई बार फंजीसाइड्स में डिप किया होगा. ओके. So just to avoid all that extra chemical, if you are eating things which are seasonal, which are local, that is. और वो सस्ता भी होगा. अगर सीजनल है तो बहुत सस्ते में भी मिलेगा. So अगर आपको, if you are that aware कि आपको पता है अच्छा बैंगन का प्राइस कब ऊपर नीचे होता है, then you can say अच्छा भी बैंगन का सीजन है. तो जो चीज आपके इलाके में उग रही है और अगर वो सस्ती है तो मोस्ट लाइकली वो कहीं आसपास से ही आई होगी और वो हर ठेले पे नजर आएगी आपको. क्योंकि वो लोकल है, बहुत ज्यादा उग रहा है उस टाइम और अवेलेबल है, conducive to that nature is, तो absorption भी we say that कि absorption better होगा if it is seasonal. So I think that's a very good tip कि अगर आप organic नहीं समझ पा रहे हैं तो एटलीस्ट सबसे सस्ती सब्जी जो उस टाइम उग रही है और जो सबसे सस्ता फ्रूट अवेलेबल है उसको आप कंज्यूम करें सीजनली. एंड डोंट ट्राई टू गो विद ये सुपर फूड है और तो ये तो अच्छा ही होगा. और मे बी some reel has told them that blueberries is very good, but they don't know how far it is coming from. And your jamun might be better than blueberries and give you more benefit. इसका मैं बस इसे एक कैवेट ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि कई बार लोग ना इसको गलत समझ लेते हैं. जरूरी ये नहीं है कि जो चीज सबसे सस्ती वो हमेशा बेस्ट होगी. कि ऐसा जरूरी नहीं कि जो सबसे सस्ती वो सीजनल हो. ओके. अगर वो सस्ती है तो इसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो सीजनल है. ओके. पर आप थोड़ा सा चेक करिए राइट कि क्या वो सीजनल है कि नहीं. राइट. सिमिलरली अदर, एंड ये प्राइस वाली चीज जो सबसे ज्यादा जहाँ इफेक्टिव होती है वो होती है एक ही वैरायटी, एक ही फ्रूट के अंदर की वैरायटीज. राइट. फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, लंगड़ा आम, दशहरी आम आसपास मिलता है, अल्फांसो आम महंगा होता है. जो आम की वैरायटी जितनी ज्यादा महंगी होगी उसमें उतना ज्यादा पेस्टिसाइड डाला जाएगा. अच्छा. बिकॉज इट जस्ट मेक्स बिजनेस सेंस टू पुट इन मोर पेस्टिसाइड्स. So Alfonso mango will get maximum pesticides. Okay. And your local variety will get the least amount of pesticides. So you can also see which fruits are more sensitive, which vegetables are more sensitive. और ये आपको ऐसे नहीं पता लग जाएगा. Like अल्फांसो आम ज्यादा सेंसिटिव आम. अच्छा. आपके घर पे आएगा, 12 पीस आएंगे, जल्दी खराब हो जाएगा. 12 में से 1 आध पीस खराब निकलेंगे. So you know it's a sensitive fruit. If it is a sensitive fruit, it needs more care. That means farmers ने ज्यादा pesticide डाले होंगे. So grapes are extremely prone to pesticides. मतलब पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं ऐसा कोई फार्मर ग्रुप जो ग्रेप्स उगा सके बिना पेस्टिसाइड डाले. हमको एक भी नहीं मिला. Oh my God. इसलिए हम रेजिन सेल नहीं कर पा रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे. So grapes gets maximum pesticides. Any fruit that you see which you feel very sensitive will get more pesticides. Bananas will not get that much pesticides. बढ़िया मजबूत fruit है. Guavas will not get that much pesticides. सस्ता fruit है. So that's also a good way. अगर आप organic नहीं खरीद पा रहे हैं, one you can do is peel the layer as much as possible. अच्छा. Eat fruits जिनमें छिलका होता है ऊपर. जैसे केला है, आप केला खाइए.
कोई भी पेस्टिसाइड जो स्प्रे होता है, at least you can say majority of it will be on the skin. Okay. 50% of it will be on the skin. तो अगर आप उसका स्किन हटा पाएंगे, ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका स्किन हट सकता है, तो फिर आपका पेस्टिसाइड इनटेक और वो जो कहते हैं कि किसी पानी में उसको थोड़ी देर बेकिंग सोडा में रख देना चाहिए, इज दैट washing hands. ओके, If you're washing vegetables 5-10% उसमें से थोड़ा सा और कम हो जाएगा. बेकिंग सोडा से वॉश करेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ये पेस्टिसाइड्स थोड़े कम हो जाएंगे. अगेन इट्स नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑर्गेनिक फूड. राइट. इट्स लाइक अ बैंडेड सोल्यूशन कि कुछ नहीं कर सकते तो बस इतना तो कर लो, हर बार कर लीजिए. सो एक जब हम पिछली बार एथिकल डेयरी फार्मिंग पे बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मूंग जो है, मूंग दाल या मूंग बीन्स जो है, वो तो आपको कभी भी बिना ये देखे कि ऑर्गेनिक है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मूंग को उगाना बहुत मुश्किल होता है और उसमें सबसे ज्यादा छिड़काव होता है. इज दैट राइट? या मूंग इज ऑल्सो लाइक अ सेंट. सारी दालों में मूंग ज्यादा केयर चाहिए, उसको ज्यादा सेंसिटिव दाल है, अच्छा, इसलिए मूंग में और उड़द में ज्यादा पेस्टिसाइड डाला जाएगा. चना दाल में या काबुली चना में कम पेस्टिसाइड डाला जाएगा. अच्छा. So that is also ओके, ओके, ऑलराइट. सो वेजिटेबल्स में तो आपने बता दिया है कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में कौन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं. जो ग्रेन्स हैं, जो उसमें कौन कौन है जो ज्यादा, जिनके विच आर मोर हैव मोर पेस्टिसाइड लोड, एंड आर देयर एनी ऑफ दोज विच हैव लो पेस्टिसाइड लोड, जिनके ऊपर ज्यादा, जो थोड़े ज्यादा रोबस्ट होते हैं? I think again I would say kind of a similar thing. जो चीजें ज्यादा महंगी या प्रीमियम है उनमें ज्यादा पेस्टिसाइड डालेगा जाएगा. अच्छा. So राइस में फॉर एग्जांपल बासमती राइस will naturally get more pesticides. Most of the basmati rice anyways is grown in north. अच्छा. पंजाब, हरियाणा, यूपी में बासमती राइस होता है, साउथ की सॉइल में उग ही नहीं सकता. अच्छा. ये जगहें वैसे ही पेस्टिसाइड्स के लिए इतनी फेमस हो चुकी है, तो बासमती राइस तो ना ही खाएं अनलेस आपको. प्लस बासमती राइस की बहुत हाइब्रिड वैरायटीज भी बहुत आई हैं. अच्छा. तो वो दोनों एंगल से ठीक नहीं है, हमारे लिए खराब है. दाल्स का जैसे मैंने आपको बताया, वो मिलेट्स डेफिनेटली रिक्वायर्स, आई मीन वेरी, आप शुरू हो गया है मिलेट्स में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डालना. अच्छा, क्योंकि अब वो एकदम से मेनस्ट्रीम आ गया है. मेनस्ट्रीम आ रहा है. बट स्टिल आई वुड से मेजरली pesticide load or fertilizers in millets would be way lesser because they are way more resilient crops. So millets you can definitely integrate without. That's good to know. Things. Yeah. Okay. That's amazing. Thank you so much for all this information. It has been absolutely a great knowledge. The audience is able to take advantage of this. And we will put down the link of your website on the YouTube video that we will put up, so that if they want to reach out to you, they can directly reach out to you and buy the products, because I think you're doing a fabulous job, and I hope there are a lot of more people like you who come and start doing the same as what you're doing. So thank you so much. Thank you, and it was such a pleasure. मतलब इतना free flowing conversation था. Thank you for coming. Thank you so much.